for those privileged few, education is a life changer. लेकिन 90% से ज़्यादा जो बच्चे हैं हमारे, for them, we are okay to not have meaningful pathways or clear direction की how can they succeed in life and in work. And a lot of our investments in education have stayed either at the tertiary level of kids who go to college, जो IIT, AIMS, so the top colleges have got a lot of investment. Interestingly and thankfully now, we also have a lot of investment in primary education with a mission around foundational literacy and numeracy. I feel it's important to raise the issue about what does secondary education, what happens between grade 6th and 12th, what does that need to be? What happens inside ITIs? How can these become a lot more relevant to the current work and world? And we as Udyam have been doing some things over the last 5 to 6 years and have some answers. But we feel that we need the entire ecosystem, and especially the development ecosystem and the government to come together to start focusing a lot more on it. So that is the intention or the reason behind having Prayas. That there is an urgency to this issue, because by 2031 we would have become the youngest we would ever become, right? And after that we would start becoming older as a country. तो हमारे पास मुश्किल से 8 साल है जिसमें what we call the demographic dividend, if we want to leverage that, कि हमारी जो youth की जो capabilities है, potential है, if that is to drive India forward, we have this time to be able to do that. And I feel as a citizen that hey, we need to do more, and that's the intention of bringing all of these people together. My name is Priya Agrawal. I'm the founder of Antarang Foundation, and I'm really happy that Prayas is happening. जब हम लोग मिलते थे and we used to talk about बच्चों का क्या होगा आगे जाके, like Mekin already mentioned that for this demographic dividend, for all of our 250 plus million young people to actually become contributing, productive members of society, today it's not happening. There are still many gaps, right? So I am here at Prayas and I'm happy to be part of it and and to me this is a first time that organizations that are working with young people, government agencies as well as the young people themselves are coming together with an intention to ask questions and discuss solutions. यहाँ पे पहली बार ऐसे हो रहा है कि nobody is coming and saying मेरे पास solution है ले लो, right? Or this is what I do and I believe it works. I think this is the first time कि we are actually coming together to discuss, ask questions and find solutions together. To me this is very important and it's meaningful that we are doing this, because हम सब सुनते आ रहे हैं कि पढ़ाई करोगे तो लाइफ बन जाएगी, लेकिन for a majority, for 90% of the country वो लाइफ बनती नहीं है, right? हो क्या रहा है, क्या कहाँ पे ये gaps है, कहाँ हम क्या कर सकते हैं to make sure कि सब बच्चों की जो भी एजुकेशन में है या जो एजुकेशन से छूट रहा है for many reasons, right? उनकी लाइफ भी कैसे बन सकती है, because the potential is there, the opportunity is there, and I believe that this is the right space for us to discuss and come up with solutions. काफी टाइम्स हम प्रॉब्लम एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं. वी सी द प्रॉब्लम एज सेइंग लैंग्वेज और मैथ इज वन बिग इशू एंड इसीलिए वी नीड टू सॉल्व. तो अभी सभी लोग इंग्लिश और हिंदी मैथ्स के पीछे लग गए हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए. पर जब हम वो प्रॉब्लम व्हेन वी आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, काफ़ी टाइम जो आगे क्या होगा उनका लैंग्वेज मैथ पढ़ के, क्या उनको आगे भविष्य में वो कुछ हेल्प करेगा, विल इट बी ऑफ यूज, हाउ विल वी लिंक लर्निंग विथ लाइवलीहुड या करियर, वो गैप एक रह गया है. क्योंकि काफ़ी टाइम हम करियर एजुकेशन को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं. हमारे सेकेंडरी स्कूल्स में हम यही कहते हैं कि आप 10th पास कर लीजिए, पर वो जो प्रोसेस है एक्सप्लोरेशन का, जब मुझे कुछ
करियर्स के बारे में समझना है, आई वांट टू लर्न मोर एंड गेट मोर इंटर्नशिप्स, गेट मोर एक्सेस टू रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, वो नहीं इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है. दैट डजंट गेट द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस दैट इट नीड्स एंड डिजर्व्स. इस वजह से जो हम लेटर देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, वाई इज देयर अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोग जो स्कूल सिस्टम से निकल के आ रहे हैं उनको पता नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं, एंड दे एंड अप स्टेइंग अनएम्प्लॉयड ऑफन टाइम्स आफ्टर अर्निंग लॉट्स ऑफ डिग्रीज. तो ये जो प्रॉब्लम है कि हमें करियर और लाइफ आउटकम्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए एज एन एजुकेशन सिस्टम, एंड उसके लिए एक संस्था के पास शायद सारे आंसर्स नहीं हैं. अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रही हैं. तो कैसे वी कैन ब्रिंग टुगेदर द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हु कैन थिंक कलेक्टिवली कि ये प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ जो नैरेटिव है वो कैसे बदले, कि सिर्फ हिंदी मैथ जरूरी नहीं है, करियर एजुकेशन जरूरी है, करियर के साथ साथ जिंदगी के क्या लाइफ आउटकम्स होने चाहिए, क्या वो बच्चा खुश है, क्या उसके पास वो इंफॉर्मेशन है जिससे कि वो अपने डिसीजंस बना सके फ्यूचर के लिए, क्या इम्पोर्टेंस सिर्फ बैचलर्स और ग्रेजुएशन को मिल रहा है, या वो डिग्निटी करियर मतलब डिप्लोमा या आईटीआई को भी दी जा रही है, जिससे कि ये ना हो कि वोकेशनल है जो इज मेंट फॉर अंडर प्रिविलेज या लेस प्रिविलेज. जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट का या लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन का जो हमारे यंग पीपल फेस. आई थिंक प्रयास एक वो प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम साथ में आके प्रॉब्लम को समझें, सॉल्यूशंस डिफाइन करें. शहर में या गांव में किसी भी साधारण बच्चे, आप ये भी नहीं कहूँगा कि जो गरीब वर्ग से हैं, जो पैसे हैं. ओ हाँ, मेरा नाम अक्षय सक्सेना है, मैं अवंती फेलोज चलाता हूँ. हम लोग करीब 30,000 बच्चों को जेई, नीट, बाकी कंपेरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, ताकि वो जो टॉप 10% कॉलेजेस हैं उनमें बराबरी का हिस्सा उन्हें भी मिले, बराबर की सीटें मिलें. बट जैसे कि मेरे से पहले लोगों ने कहा कि जिस वर्ग के साथ हम काम करते हैं और द पॉपुलेशन दैट वी वर्क विद वो इतनी छोटी है, और उनके लिए जो सीटें अवेलेबल हैं जिससे उनको सच में नौकरियाँ या करियर मिले, या जो इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी हम कहते हैं, मानिए कि पीढ़ी भर पीढ़ी गरीबी में जीते आए हैं, उससे निकलने का जो साधन है वो बहुत ही कम लोगों के पास है इस देश में. कि आप डिग्री कर लो, उसके बाद आप 10 साल बाद, 15 साल बाद आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो. और अगर आप किसी भी साधारण बच्चे को देखें, उससे पूछिए आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से, जो भी वो बच्चा बयान करेगा या बच्ची बयान करेगी, उसके लिए आज कोई भी तरीका नहीं है कि आप ये चीज़ें कर लीजिए तो आपको अपनी एस्पिरेशंस, अपनी होप्स और ड्रीम्स तैयार पाने का आपके पास जरिया है. कोई तरीका नहीं है, कोई सीधी रेखा नहीं है. बहुत ही टेढ़ी-मेढ़ी और ऐसे जो होप से पाथवेज हैं जिससे उनको ये सफलता मिल सकती है, और बहुत कम बच्चों को सफलता मिलती है. तो प्रयास एक तरह से, जैसे आकाश ने कहा, प्रिया ने कहा, मैकन ने कहा, कि हम जितनी भी सिविक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हम साथ आके ये सोचना चाहते हैं कि हम ये बदलें कैसे, हम कैसे क्रिएट करें पाथवेज, ताकि जो बच्चे को जो करना है, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसकी जो होप्स एंड ड्रीम्स हैं, उसके लिए उसके पास कोई जरिया भी हो, कोई पाथवेज भी हो. और इसके लिए हमें हर कुछ बदलना पड़ेगा. हमें स्कूलों का क्या रोल है सोसाइटी में, वो बदलना पड़ेगा. सरकार का क्या रोल है इसमें, वो उसके बारे में सोचना पड़ेगा. कॉर्पोरेट सेक्टर का क्या रोल है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा. और ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की बस की बात है ही नहीं. और एक हमें कलेक्टिव एक्शन या सब सारे सेक्टर को साथ जोड़कर सोचना पड़ेगा कि हम इसे करें कैसे. और इससे कई आंसर होंगे, कुछ पॉलिसी के आंसर होंगे, कुछ हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कुछ ऑन डिजिटल सोल्यूशन होंगे, कुछ फिजिकल सोल्यूशन होंगे. उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है. और अब तक मेरी जानकारी में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे लोग आकर इस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं. तो इसलिए प्रयास बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मेरी आई होप कि हम ये प्रयास जारी रखें और सोचते रहें इसके बारे में.